Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have to revise the electrochemical cell, which is the topic of chapter number 7, which is electrochemistry. Now, what is electrochemical cell? As you know that what is electrochemistry, which is the branch of chemistry in which we study the interconversion of electrical and chemical energies. Okay, so that is the electrochemistry. Now, what is electrochemical cell? That is the cell, or we say that is the device, or we say that is the instrument in which the interconversion of electrical and chemical energies takes place. ठीक है, electrochemical cells, the cell shows that it is a device. Okay, so electrochemical cell is an energy device in which the interconversion of electrical and chemical energies takes place. Interconversion means the cell in which the electrical energy is converted into the chemical energy, or we say it is the cell in which the chemical energy is converted into the electrical energy. Clear? Now there are the two types of electrochemical cell, and that is the electrolytic cell and the second one is the voltaic cell. As you know, what is electrolytic cell? It is the cell in which the electrical energy is converted into the chemical energy. As the name indicates, electro means electricity. So the name indicates that in this cell, the electrical energy is converted into the chemical energy, in which the electrical energy is used to produce a chemical change. Clear? Now, what is voltaic cell? It is the device in which the chemical energy is converted into the electrical energy. It means that the chemical energy is used to produce an electrical energy. Like chemical reaction takes place in a cell and the electrical energy is produced. Clear? Now we have to discuss the main components of electrochemical cell, and it has the two main components, that is the electrolyte and electrodes. It means that the cells, like the electrolytic cell and the voltaic cell, it has the two main components. Both have the two main components, means in both devices, in both cells, the two main components must be present, that is the electrolyte and the electrodes. Clear? So first of all, we have to discuss about the electrolytes. Keep it in mind that maybe the question is given to you that differentiate between the electrolyte and non-electrolyte. Clear? So you have to answer that question. Clear? So first we have to discuss the electrolytes. Then what is electrolyte? It is a substance. An electrolyte is a substance in a solution or in molten state which dissociate or ionizes into the positive and negative ions and conduct electricity. इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सोल्यूशन में जब आप उसको डालें, मतलब सोल्यूशन फॉर्म में मीन्स वाटर में आप उसको डिज़ोल्व कर दें, या फिर आप उसकी मोल्टन स्टेट मीन्स मेल्टेड फॉर्म, अगर आप उसको मेल्ट कर दें उस फॉर्म में, वो डिसोसिएट हो जाएं आपके पास, या हम कहते हैं आयोनाइज हो जाएं पॉजिटिव या नेगेटिव आइंस में. तो जब ज़ाहिरी बात है क्योंकि हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा आइंस होते हैं, या हम कहते हैं जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर आइंस की बात है, सो हम आइंस की बात करेंगे. जितने ज़्यादा आइंस होते हैं मीन्स के उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ठीक है? सो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो कि आयोनाइज हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में. तो ज़ाहिरी बात है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? सो इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो मोस्टली इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं दैट आर द आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड हमें देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस. जैसे कि आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. देखिए, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एसिड्स में लाइक HCl, बेसिस में लाइक NaOH, और सॉल्ट्स में लाइक NaCl एक्सेट्रा. ठीक है? सो अगर डिफरेंस क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सो फर्स्ट यू हैव टू डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है? लाइक व्हाट इज़ लाइक नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, अभी मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले this is the non-electrolyte. Non-electrolyte are those substances which do not dissociate or ionizes in aqueous solution or in molten state. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आयोनाइज नहीं होते. तो जब वो आयोनाइज नहीं होंगे तो जाहिर बात है उनमें से जब आयंस होंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करेंगे.
ठीक है. सो डू नॉट डिसोसिएट और आयनाइजेस इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. सो दिस इज़ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो लाइक बेंजीन, इसमें मोस्टली हम कहते हैं, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं दैट इज़ द नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स. मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स, और मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड में भी फिर हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक बेंजीन. बेंजीन जो है ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सो इट मीन्स जब इसकी आयनाइजेशन नहीं हो सकती, सो मतलब ये हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. सो दिस इज़ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन शुगर आपके पास है C12H2211. अगेन इट इज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सो इट डू नॉट आयोनाइजेज इन एक्वस सोल्यूशन, सो वी से दैट इट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. यूरिया देख लें जो कि आयोनाइज नहीं होता. सेम इसी तरह ग्लूकोज देख लें जो कि आयोनाइज नहीं होता. सो इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती. ठीक है. सो हम कहते हैं कि दो तरह के सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं. एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड द सेकंड वन इज़ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं आइंस में. तो जब आइंस होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेंगे. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोसिएट नहीं होते, सो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. क्लियर. सो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट करें, तो सबसे पहले आपने दोनों की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करना है एंड देन आप क्या करें कि आप एग्जांपल्स की हेडिंग दें. यहाँ पर आपको सिर्फ देखें एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स नजर आए. नो, यू हैव टू राइट द प्रॉपर रिएक्शन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि अभी आप लोग आगे देखेंगे. क्लियर. फिर आपके पास आप जो है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. टाइप्स में भी आप डिफरेंस में टाइप्स को भी कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैज़ देयर नो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, कि मतलब हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कोई एग्जाम्पल नहीं है. सो टाइप्स आपके पास क्या हैं? द सब्सटेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने आपको समझा दिया है. इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो मेनली अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, सो वी से दैट इलेक्ट्रोलाइट्स हैव 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम मेन बात करते हैं, आयनाइजेशन पर डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? आपके पास डिफरेंस क्वेश्चन भी आ सकता है, द डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. Clear. So firstly you have to discuss the strong electrolytes definition. Strong electrolytes are those substances which dissociate or ionizes completely in an aqueous solution or in molten state. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कम्प्लीटली क्या हो जाएं, आयनाइज. मीन्स जैसे ही आप उसको वाटर में डालें और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, मतलब कोई भी, जैसे कि हम NaCl को डालते हैं तो NaCl सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस. तो तब हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है. ठीक है, सारा का सारा डिसोसिएट हो गया है इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस. ठीक है. तो ज़ाहिरी बात है जितने ज़्यादा आइंस होंगे, ज़ाहिरी बात सारा का सारा वो डिसोसिएट हो गया है, सारे आइंस हमारे पास आ गए हैं. तो इट मीन्स दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू अ लार्ज एक्सटेंट. इट मीन्स कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पास हो सकती है, इट लार्ज एक्सटेंट पास हो सकती है, बहुत हद तक. ठीक है. अच्छा, फिर देखें आपके पास इसी के ऑपोजिट पे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन देखें. दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट और आयनाइजेस स्लाइटली और partially in aqueous solution. partially means half, means आधा. in aqueous solution और means जब हम weak electrolytes को जब हम वाटर में डालते हैं तो उसमें कुछ लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल आपको नज़र आ रही है. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डालते हैं ना, तो आपको उस वाटर में दोनों फॉर्म्स मिलेंगे. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म भी मिलेगी आपको, अमोनियम आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस जो हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस भी आपको मिलेंगे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड फॉर्म में भी आपको मिलेगा. सो इसको फिर हम कहते हैं कि दे आर द वीक इलेक्ट्रिक. वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ. जब जाहिर बात है जब वो पूरा आयनाइज नहीं हुआ, तो इट मीन्स दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू अ वेरी स्मॉलर एक्सटेंट. ठीक है. तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम पास होगी. क्लियर. नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर आप देखें आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं. तो देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हम वही बात करेंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो फर्स्ट वन तो आप ऐसे करें, सबसे पहले आप एसिड्स देख लें. एसिड्स के लिए आपने हमेशा माइंड में रखना है कि उसमें हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है. यहाँ पर देखें आपको 2 एग्जांपल्स में हाइड्रोजन नज़र आ रहा है. एक आपको HCl नज़र आ रहा है, एक आपको HNO3 नज़र आ रहा है. सो दीज बोथ आर द एसिड्स. क्लियर. सो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स आपने HCl को जब वाटर में डिसोसिएट कर, देखें AQ साथ लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट इन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस मीन्स इन
इन वाटर। सो जब आपने HCl को वाटर में डाला सो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आइंस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को देखें, जब आपने इसको वाटर में डाला तो ये आपको देगा H पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आइंस NO3 माइनस, इसके ऊपर माइनस भी आता है। ठीक है, सो ये दोनों आपके पास क्या है, दीज आर द एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये हमें हाइड्रोजन आइंस दे रहे हैं, और ये क्योंकि आपके पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो गए हैं। क्लियर? फिर देखें, बेस के लिए आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने हिंट रखनी है OH का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको दो नज़र आ रहे हैं, एक आपको नज़र आ रहा है NaOH, दूसरा आपको नज़र आ रहा है KOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है इनटू सोडियम आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सोल्यूशन इज डिसोसिएटेड इनटू द पोटेशियम आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है, सो ये आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए हैं। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इट मीन्स दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, अब इन्हीं एसिड्स और बेसिस को जब आपने याद रख लिया तो आप इसी से सॉल्ट बना सकते हैं। कैसे? आप बेस का जो है तो वो सोडियम ले लें, मीन्स इसका मेटल साइड OH को छोड़ दें और इसका H छोड़ दें, जो H और OH मैंने आपको इंडिकेशन के लिए कहा था ना, उसको छोड़ दें। यहाँ से आप सोडियम ले लें और जो आपके पास एसिड्स हैं उसमें से आप क्लोरीन ले लें, तो क्या बना, NaCl। तो क्या बन गया, दिस इज़ द सॉल्ट। ठीक है, मीन्स जब एसिड्स और बेसिस कंबाइन होते हैं ना तो उनसे सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। सॉल्ट और वाटर, तो देखें H और OH, वाटर बन गया तो वो चला गया, तो आपके पास क्या रह गया, NaCl। सो NaCl क्या है आपके पास, सॉल्ट। सो आप NaCl की एग्जांपल इसमें ऐड कर दें कि NaCl जो है तो डिसोसिएट हो गया इनटू सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर देखें नेक्स्ट वन एग्जांपल, आप देखें यहाँ पर आपको पोटेशियम नज़र आ रहा है, तो यहाँ से OH को हटा दें और एसिड HNO3 से H को, तो H और OH वाटर दे देंगे आपको, तो बाकी क्या रह गया, KNO3। सो KNO3 इज़ अ सॉल्ट। ठीक है, सो आप यहाँ से ही कर सकते हैं, जैसे कि आपको देखें ऊपर एग्जाम्पल NO3 लिखा हुआ है, आप KNO3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो सब ये जब आपको सोडियम आइंस और नाइट्रेट आइंस दे रहा है तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हमने देखे सिंगल एरो से शो किया है, क्योंकि सारा का सारा NaCl, सारा का सारा सोडियम नाइट्रेट या HCl वगैरह सारे के सारे कन्वर्ट हो गए हैं किस चीज़ में, आइंस में। सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, सो ये आपके पास था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए अगेन OH आया है तो इट मीन्स कि दिस इज़ अ बेस। ठीक है, सो OH की वजह से आप कहते हैं ये बेस है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या दे रहा है, अमोनियम आइंस प्लस हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये दोनों स्टेट्स में प्रेजेंट होगा। जब आप ऐसे सॉल्यूशन को देखेंगे तो हमेशा आपको उसमें आइंस की फॉर्मेशन, अमोनियम आइंस हाइड्रोक्सिल आइंस भी मिलेंगे, आपको उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंबाइंड फॉर्म भी मिलेगी। इसलिए हम इसको डबल एरो से शो करते हैं, विच शोज़ द इक्विलिब्रियम, मीन्स जिसमें दोनों कंबाइंड फॉर्म एंड अनकम्बाइंड फॉर्म दोनों आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसको हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने डबल एरो से शो करना है, फिर इनके रिएक्शंस को। फिर देखिए नेक्स्ट वन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एसिटिक एसिड CH3COOH। ये पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है इनटू द एसिटेट आइंस एंड हाइड्रोजन आइन। सो ये आपके पास देखें हाइड्रोजन आइन आपको दे रहा है, इट मीन्स दिस इज एन एसिड। ठीक है, सो दिस इज द वीक एसिड। सो यहाँ पर आपके पास जो बना है ये आपके पास वीक एसिड बना है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ है। सो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम जो है तो उसके पास होगी। यहाँ पर नेक्स्ट वन देखें आपको नज़र आ रहा है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब सिंपल, आप लोग बेंजीन आपके माइंड में है कि बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, C6H6। ठीक है, वहाँ से एक H चला जाता है, बेंजीन में से एक H हट गया तो क्या रह गया, C6H5। उसकी जगह पर उन्होंने आपके पास क्या लगा दिया है, COOH, विच इज़ द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ये आगे आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बस आप सिर्फ ये याद रखें कि बेंजीन में से एक H चला गया और उस H की जगह पर COOH लग जाता है। ठीक है, तो वो हमें फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, वो भी पार्शियली डिसोसिएट होता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो उसको भी हम डबल एरो से शो करते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ पार्शियली डिसोसिएट इनटू द पॉजिटिव एंड negative ion, so it conduct electric current to a very smaller extent, so we say that this is the weak electrolyte. Clear? So आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है that differentiate between the strong electrolyte and weak electrolyte, so you have to give the proper headings
with this question, that is of the first one is that of the definition. सबसे पहले आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि जो है कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और जो कि इलेक्ट्रिक करंट को लार्जर एक्सटेंट तक जो है तो उसमें से हम कहते हैं कंडक्ट कर सकते हैं. इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दें, एंड देन यू हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ एग्जांपल्स एंड सिंपल राइट डाउन द डिफरेंट रिएक्शंस. क्लियर. सो ये आपके पास सारा था, हमारे पास ये मेन कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया, दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर. सो यू हैव टू प्रैक्टिस द रिएक्शंस ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. और एक चीज़ और आप लोग अपने माइंड में रखें, मैं आपको हिंट बता दूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे याद रहेगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो देखें, आप अगर NaCl को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा छोटा है. लाइक HCl को आप देख लें, इसका जो साइज़ है वो छोटा है. जबकि अगर आप जो है इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखें, आपको एसिटिक एसिड थोड़ा बल्की है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा. इट मीन्स कि वो हमेशा पार्शली डिसोसिएट होंगे, और जितना छोटा होगा वो आराम से जल्दी टूटेगा, तो हम कहते हैं कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में. सो प्रॉपर बेटे स्टूडेंट्स, आप लोग इसको प्रॉपर जो है तो इसकी प्रैक्टिस करें घर में इन रिएक्शंस की, और स्पेशली इन क्वेश्चंस को समझें कि कौन से डिफरेंस क्वेश्चन में भी आ सकता है, या आपके पास राइट नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइट भी आ सकता है. सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज टाइप्स. क्लियर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.